Hello dear students, today sequences and series miscellaneous exercise 2. Now see question number 30th. If P, Q, R, S are in GP, that is geometric progression, so that P square plus Q square plus R square in the first bracket and in the second bracket Q square plus R square plus S square equals PQ plus QR plus RS the whole square. Here it is given that P, Q, R, S are in geometric progression. Then we have to prove that square of P plus square of Q plus square of R multiplied by square of Q plus square of R plus square of S equals square of PQ plus QR plus RS. How to prove it? Let us see solution. Since P, Q, R, S are in GP, that is geometric progression, therefore the common ratio will be same. So we should write here Q T2 upon T1 means Q by P equal to T3 upon T2, that is R by Q, equals T4 upon T3, that is S by R, equals K. Consider it, or you can say this implies that. अब इसको हमने assume कर लिया यहाँ पर कि assuming that it is K. P by Q upon P equal to R by Q equal to S by R. They are common ratio of the given four terms, and let it be K, a constant which is not non-zero constant. See, this implies that. अब देखो Q upon P equal to K. What does it mean? Q equal to PK. Q equal to PK. If we substitute the value of Q here, that is R upon Pk, so R upon Pk equal to K, then R equal to what? Pk into K, that is P into K square. फिर से देख लो, R upon Pk, because value of Q is Pk, so this will be R upon Pk equal to K, that is R equal to Pk into K becomes Pk square. Similarly, S equal to Rk, अब यहाँ पर देखो S इक्वल टू R इंटू के, बट R इक्वल टू पी के स्क्वायर इंटू के. देखो R इक्वल टू पी के स्क्वायर और एक के ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी के क्यूब. देन यू कैन से Q by P equal to R by Q equal to S by R equal to K. This implies that Q equal to Pk, R equal to Pk square and S equal to Pk cube. Consider it is equation number first. After considering equation first and here Q, R, S are converted in terms of P and K only, तो अब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि इसको हमने अज्यूम क्यों किया. अज्यूम इसलिए किया कि अब अगर हम लोग यहाँ से LHS में से पूरा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना है, इसको हम लोग अगर यूज कर लेते हैं और इसमें ये सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं और उनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है. तो आइए लेते हैं यहाँ पर इसका LHS. Since LHS equal to P square plus Q square plus R square multiplied by Q square plus R square plus S square. Now substituting the values of QRS here. So in the first bracket here P square, so P square as it is, plus value of Q which is equal to PK, you can check from here also, it is PK, that is square of PK, plus value of R क्या है PK square, तो यहाँ PK square whole square, and then a rectangular bracket closed, here also closed, multiplied by सेकंड ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर दैट इज पी के होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है यहाँ पर पी के स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बट एस इक्वल टू पी के क्यूब, यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखो एस इक्वल टू पी के क्यूब, तो पी के क्यूब होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ये सभी वैल्यूज हमने इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्स्टिट्यूट कर लिए. नाउ अब इसके बाद क्या करना है, ये हमें देखना है कि इसमें सभी का स्क्वायर हम पहले कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखो होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर सब यूज किए गए हैं. तो इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस हियर पी स्क्वायर के स्क्वायर, फॉर दिस पी स्क्वायर के रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय पी के होल स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पर पी इंटू के होल स्क्वायर पी के स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर के रेज टू 4 plus pk cube whole square means p square k raised to 6.
ये हमने सिर्फ और सिर्फ ये सभी जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर सबका स्क्वायर था, तो हमने इनको स्क्वायर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, राइट। नाउ वी सी दैट फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट पी स्क्वायर इज कॉमन। देखो पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर एक ऐसा टर्म है जो तीनों टर्म से कनेक्टेड है, ये पी स्क्वायर। तो हमने पी स्क्वायर को बाहर कॉमन कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट ओनली। तो टेकिंग पी स्क्वायर कॉमन देन रिमेनिंग टर्म्स विल बी 1 फ्रॉम हियर। देखो यहाँ पी स्क्वायर कॉमन है तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन है तो के टू द पावर 4। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय। अब ये सेकंड ब्रैकेट का टर्म आता है कि सेकंड ब्रैकेट के टर्म में हमें क्या कॉमन करना चाहिए। तो देखो सेकंड ब्रैकेट में जो सबसे लोएस्ट टर्म है वो है पी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो टेकिंग पी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन, क्योंकि ये सभी में है, देखो सब में है पी स्क्वायर के स्क्वायर। तो टेकिंग कॉमन वी गेट हियर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के रेज टू 4। नाउ जो आउटसाइड द ब्रैकेट टर्म्स हैं, आउटसाइड ब्रैकेट टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बिकम्स, देखो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बिकम्स पी रेज टू 4 एंड के स्क्वायर एज इट इज इंटू 1 plus k square plus k raised to 4 and here also 1 plus k square plus k raised to 4, that is 1 plus k square plus k raised to 4 whole square, क्योंकि 2 टाइम्स है यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया गया और ये p रेज टू 4 k स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट ये टर्म को मल्टीप्लाई करके मिला। मीन्स LHS इक्वल टू LHS बिकम्स p रेज टू 4 k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 plus k स्क्वायर plus k रेज टू 4 होल स्क्वायर एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ टेकिंग RHS, तो RHS जो हमारा है क्वेश्चन में यहाँ पर है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस द होल स्क्वायर, ये है RHS। तो RHS के वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इनके वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करने हैं। देखो P एज इट इज, वैल्यू ऑफ Q इज P इंटू के प्लस क्यू आर, Q इक्वल टू P इंटू के एंड R इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस R इंटू एस, दैट इज वैल्यू ऑफ R P के स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ एस पी के क्यूब और ये होल स्क्वायर यहाँ पर है एज इट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मीन्स ऑल द वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फॉर क्यू आर एंड एस इन टर्म्स ऑफ पी एंड के। नाउ RHS becomes here p into pk p square k plus pk into pk square p square k cube plus pk square into pk cube becomes p square k raised to 5 whole square here. Now it is equal to p raised to 4 k square बिकॉज अब देखो ये कॉमन कैसे आता है, यहाँ पर होल स्क्वायर है इन द ब्रैकेट व्हाट इज कॉमन, पहले इन द ब्रैकेट देखो मिनिमम लोएस्ट टर्म जो यहाँ पर है वो क्या है पी स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर के यहाँ से भी पी स्क्वायर के यहाँ से भी पी स्क्वायर के कॉमन आएगा, बट इनके होल स्क्वायर है। जब ये टर्म ब्रैकेट से बाहर आएगा आउट ऑफ द ब्रैकेट तो दिस विल बी पी रेज टू 4 के स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर के हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट कॉमन कर रहे हैं और उसका होल स्क्वायर बाहर आएगा तो पी रेज टू 4 के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। Remaining terms in the bracket here 1 plus k square plus k raised to 4 whole square as it is, क्योंकि ये इनके टर्म के लिए होल स्क्वायर तो रहेगा, जो हमने बाहर कॉमन किया था उनका होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि LHS इक्वल टू पी रेज टू 4 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर के रेज टू प्लस के रेज टू 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी RHS इक्वल टू ऑल्सो पी रेज टू 4 इंटू के स्क्वायर multiplied by 1 plus k square plus k raised to 4 whole square. So from equation number 2 and 3 we can say LHS equal to RHS. तो from equation 2 and 3 LHS equal to RHS ये complete हो गया। तो अगर यहाँ पर चाहें तो LHS equal to RHS लिखने के बाद हम लोग LHS and RHS के जो अपना टू प्रूफ का पार्ट था वो पूरा सेंटेंस एक बार यहाँ वापस लिख सकते हैं, hence proved। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30th, जो कि प्रूव दैट के लिए आया। और अगर ये क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस में आता है तो इधर इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू समथिंग पूछेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था यहाँ पर, ये ऐसा देंगे पी क्यू आर एस आर इन जी पी देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो ये हमें फिर से वही टर्म लेकर के करना है, लेकिन तब हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म में आएगा। तो ये इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ये सब टर्म को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर टर्म्स हैं तो उनको हम फिर से उसको चेंज करके ले सकते हैं, या
किसी दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, या इधर से क्या होगा इक्वल, ये है कि नहीं है, तो ये ऑप्शंस में रहेंगे ये सब टर्म्स। ये जो RHS है ये ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करके दिया जाएगा, मिक्सअप करके दिया जाएगा, तो हमें चेक करके देख लेना चाहिए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये उससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बताता है कि इफ PQRS आर इन GP, ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 30th में भी दिया था। तो इफ PQRS आर इन GP दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो दैट P⁻n प्लस Q⁻n कॉमा Q⁻n प्लस R⁻n कॉमा R⁻n प्लस S⁻n आर आल्सो इन GP। मीन्स अगर PQRS GP में है तो प्रूव करो भाई कि P⁻n प्लस Q⁻n and Q⁻n plus R⁻n plus S⁻n आर आल्सो इन GP, ये भी GP फॉर्म करते हैं। अब ये समस्या खड़ी कर दी है कि अगर ये भी GP फॉर्म करते हैं, PQRS भी GP में है, तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। आइए दिखाता हूँ इसका प्रूफ कैसे करना है। देखो, सिंस वी हैव टू प्रूव दैट P⁻n प्लस Q⁻n कॉमा Q⁻n प्लस R⁻n कॉमा R⁻n प्लस S⁻n आर इन GP, ये हमें प्रूफ करके लाना है कि GP में है। तो ऐसा तो ये सेंटेंस यहाँ पर देखो कॉमा कॉमा करके है, तो ये 3 टर्म्स तो ऐसा आने वाला नहीं। तो हमें इनका क्या करना होगा, मतलब हमें रियल में क्या प्रूफ करना है। रियल में हमें प्रूफ करना है कि T2/T1 इक्वल टू T3/T2, इनके जो कॉमन रेशियो हैं 3 टर्म्स के, दे विल बी सेम। या हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि Q⁻n प्लस R⁻n होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, मीन्स P⁻n प्लस Q⁻n इंटू R⁻n प्लस S⁻n। एक तो ये प्रूफ करें, तो इसमें हम लिख सकते हैं देयरफॉर टू प्रूव दैट Q⁻n प्लस R⁻n अपॉन P⁻n प्लस Q⁻n इक्वल टू R⁻n प्लस S⁻n अपॉन Q⁻n प्लस R⁻n, ये हो गया T2/T1 इक्वल टू T3/T2। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कंसिडर कर लेना चाहिए। कोई भी एक प्रूफ कंसिडर करो और स्टार्ट कर दो अब इसका प्रूफ। तो ये हमारा, अगर हम LHS इक्वल टू RHS ये प्रूफ कर पाते हैं, इसका मीनिंग होगा कि दे आर इन आल्सो GP। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी प्रूफ और देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे आता है। सिंस PQRS आर इन GP दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर Q बाई P इक्वल टू R बाई Q इक्वल टू S बाई R इक्वल टू K से। कंसिडर, यहाँ पर से का मीनिंग लेट या कंसिडर। तो Q अपॉन P इक्वल टू R अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R इक्वल टू K, देयरफॉर Q इक्वल टू पी के, R इक्वल टू पी के स्क्वायर एंड S इक्वल टू पी के क्यूब। फिर से वही बात है, देखो Q अपॉन P इक्वल टू K, तो Q इक्वल टू P इंटू के। अब इसके बाद R इक्वल टू Q इंटू के, तो Q का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो Q के इंटू के दैट इज सॉरी P के, Q का यहाँ पर Q का वैल्यू क्या आया हुआ है, देखो P के, तो यहाँ पर R का वैल्यू है Q इंटू के और Q का वैल्यू है P के, तो P के इंटू के P के स्क्वायर। S इक्वल टू R इंटू के और R का वैल्यू है P के स्क्वायर, तो P के स्क्वायर इंटू के P के क्यूब। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आया, अब इसी की मदद से, इसी की हेल्प से, इसी की सपोर्ट से, इस इक्वेशन की सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसी इक्वेशन के सपोर्ट से आगे का हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स LHS एंड RHS विल बी सेम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए उसको भी प्रूफ करके देखते हैं। नाउ टेकिंग LHS, LHS मीन्स दिस पार्ट, ये इसको हमें LHS यहाँ पर लेना है। LHS इक्वल टू Q⁻n प्लस R⁻n अपॉन P⁻n प्लस Q⁻n, it is equal to pk whole raised to n because value of q is pk plus pk square whole raised to n value of r, and here p raised to n as it is plus value of q that is pk whole raised to n। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ रीजन देना पड़ेगा कि इट कम्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो P⁻n K⁻n कॉमन, यहाँ पर P⁻n एंड K⁻2n है, तो हम यहाँ से K⁻n को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 टाइम रिमेनिंग रह जाएगा। तो टेकिंग P⁻n K⁻n कॉमन इन द ब्रैकेट 1 प्लस K⁻n, देखो P⁻n K⁻n ये दोनों ही कॉमन है, तो यहाँ 1 आया, यहाँ पर P⁻n और K⁻2n है,
तो इसमें से 1 टाइम कॉमन हुआ तो 1 टाइम रिमेनिंग। In the denominator p raised to n common, here in the bracket 1 plus k to the power n. Now 1 plus k power n, 1 plus k power n will be cancelled from numerator to denominator, and p raised to n also cancelled. Here remaining term will be k to the power n. तो ये k raised to n यहाँ पर सेफ रह जाएगा। तो LHS becomes k raised to n and let it be equation number 2। ये तो रहा LHS। अब अगर RHS भी हमारा प्रूफ करके k to the power n आता है, हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। नाउ टेकिंग RHS मीन्स ये टर्म हमें लेना है यहाँ पर RHS, ये हमारा जो RHS का टर्म है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। RHS इक्वल टू दिस मच। तो RHS इक्वल टू R रेज टू n प्लस S रेज टू n अपॉन Q रेज टू n प्लस R रेज टू n इक्वल टू PK स्क्वायर होल रेज टू n प्लस PK क्यूब होल रेज टू n अपॉन PK होल रेज टू n प्लस PK स्क्वायर होल रेज टू n। ये सभी वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी गई। अब इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर। देखो p रेज टू n और k रेज टू 2n ये तो टोटली कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ k रेज टू 3n है तो 1 टाइम रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर। तो फ्रॉम द न्यूमरेटर फ्रॉम दीज टू टर्म्स टेकिंग p रेज टू n into k रेज टू 2n कॉमन, in the bracket we get here 1 plus k raised to n. From the denominator p raised to n k raised to n common, we get 1 plus k raised to n in the bracket. Now p raised to n cancelled, 1 plus k raised to n 1 plus k raised to n cancelled, तो only और यहाँ देखो k raised to 2n upon k raised to n, तो k raised to n remaining। क्लियर? तो हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों ही वैल्यूज क्या है, सेम, यहाँ पर सेम वैल्यूज लीव कर रहे हैं। Therefore, from equation 2 and 3 we can say LHS equal to RHS। तो from 2 and 3 LHS equal to RHS। अब ये दोनों ही टर्म हमारे इक्वल हो गए, then we can say, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं hence p raised to n plus q raised to n, q raised to n plus r raised to n and r raised to n plus s raised to n are in GP। ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा प्रूफ। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, कमिंग क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32nd क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक पूरे चैप्टर में उसकी वैल्यू यूज नहीं की गई। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में मैंने दिया है, तो यहाँ से स्टूडेंट को इसको रेफर करना चाहिए। Question number 32, find the coefficient of x to the power 6 in the expansion of e to the power 2x using series formula। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 और यहाँ है इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर 2x, तो जो कि बहुत दूर दूर का रिलेशन अगर डायरेक्टली देखो तो नहीं दिखता, लेकिन आगे इसने दे दिया है कि यूजिंग सीरीज फार्मूला। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं कि सीरीज फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए क्या है। वैसे तो सीरीज फार्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स का भी सीरीज फार्मूला होता है, ई रेज टू एक्स का भी सीरीज फार्मूला है जो कि यहाँ सामने लिखा गया है, लॉग एक्स का भी सीरीज फार्मूला है एंड अदर्स आल्सो। बहुत से सीरीज फार्मूले हमारे पास है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन, 1 माइनस एक्स होल रेज टू एन, तो बहुत से ऐसे सीरीज फार्मूले हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है वो हमें यूज करना है e टू द पावर 2x के लिए। तो आइए हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द सीरीज फार्मूला फॉर e रेज टू x। सिंस सीरीज फार्मूला फॉर e रेज टू x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन x to the power n upon n factorial where n belongs to n। तो ये बहुत ही लॉन्ग अपना जो फैक्टोरियल बहुत ही लॉन्ग सीरीज फार्मूला है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। इसके लिए हमने 6th पावर तक एक्सपेंड किया। अगर यहाँ पर और ज़्यादा पावर पूछते तो और ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, और कम ही पूछेंगे तो और कम पर भी क्लोज कर सकते हो।
तो अगर ये सीरीज फार्मूला है, ये फिर से एक बार हम यहाँ देख सकते हैं, ई रेज टू एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस क्यूब ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x to the power 4 upon factorial 4 plus x to the power 5 upon factorial 5 plus x to the power 6 upon factorial 6 plus and so on। तो इनको हम किसी भी तरह से रीड कर सकते हैं। नाउ रिप्लेसिंग x बाई 2x, क्या करना है, मान लो हमें यहाँ x रेज टू 2x के लिए पूछा, e रेज टू 2x के लिए पूछा है, e रेज टू 3x भी हो सकता है, e रेज टू 5x, e रेज टू 10x, कुछ भी हो सकता है। तो रिप्लेसिंग x बाई 2x इन दिस सीरीज फार्मूला वी गेट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर e रेज टू 2x इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2x होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x होल रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 2x होल रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 2x होल रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा हो गया कि सीरीज फार्मूला फॉर द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू 2x, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा फार्मूला है और इजीली इसको बाहर भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सभी सीरीज फार्मूले का प्रूफ भी है, ऐसा नहीं कि फार्मूले ऑटोमेटिकली टपक गए, ऐसा नहीं, इनके सभी के प्रूफ हैं। और वो प्रूफ जब प्रूफ करने का चांस आएगा, प्रूफ शो करना होगा, तो मैं उसका भी वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। अभी यहाँ पर स्टूडेंट को इस फार्मूले की प्रूफ की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर इसका प्रूफ प्रोवाइड नहीं करूँगा, लेकिन हमारे वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, आपको इसका प्रूफ आगे मिल जाएगा। नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें सबसे पहले जो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर ये नंबर्स हैं और x हैं, ये सबको एग्जैक्टली ओपन कर देना है। तो e रेज टू 2x इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स। अब यहाँ देखो 2x होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 2x द होल क्यूब मीन्स 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि बोथ का क्यूब है। यहाँ पर अगले टर्म के लिए आइए देखते हैं, 2x होल रेज टू 4, तो 2x होल रेज टू 4, तो यहाँ 2 रेज टू 4 x रेज टू 4 दैट इज 2 रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू 4। Now 2x whole raised to 5 upon 5 factorial, that is 2 raised to 5 x raised to 5. So 2 raised to 5 upon 5 factorial into x raised to 5 प्लस लास्ट टर्म यहाँ पर जो हमने लिया है हमारे क्वेश्चन का, वैसे तो सीरीज एक्सपेंशन है, इसका लास्ट टर्म कितना भी लिख सकते हो, एंड नहीं होगा, एंडलेस प्रोसेस में जाएगा। 2x होल रेज टू 6 मीन्स 2 रेज टू 6 x रेज टू 6, तो 2 रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 6। और हमारा जो क्वेश्चन है अब यहाँ से समझ सकते हो, तो हमारा सबसे पहले चेक करना है कि x टू द पावर 6 कहाँ पर है, क्योंकि पूछा गया ना फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6। तो फर्स्ट वी शुड चेक वेयर इज x रेज टू 6। देखो यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, यस, x रेज टू 6 यहाँ पर आ गया। तो x रेज टू 6 कोफिशिएंट का मतलब x रेज टू 6 के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर, ये हैं इसके कोफिशिएंट। तो हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे इनको, the coefficient of x to the power 6 equal to 2 raised to 6 upon 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल और 2 रेज टू 6 का एक्सपेंशन करते हैं। देखो 2 रेज टू 6 मतलब हमें 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 6 फैक्टोरियल, that is 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपेंशन होता है। अगर फैक्टोरियल का किसी को नहीं मालूम है तो अभी इसका जो दूसरा चैप्टर आएगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसमें चल करके डिटेल्स में स्टडी कर सकते हो। तो इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो इसमें तो बहुत से टर्म्स कैंसिल हो गए, चलो इधर से चालू करते हैं, 2 गोइंग बाई 2, फिर ये 2 टू जा 4, देखो 2 इंटू 2 4 है और ये 4 कट हो गया, और एक 2 और बचता है जो कि है 2 3 जा 6, यहाँ पर हो गया 3। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही, 2 टाइम्स 2 रिमेनिंग इन द न्यूमरेटर, तो वी शुड राइट हियर 2 इंटू 2, और यहाँ पर हो गया है 3 और यह भी है 3 और एक है 5, तो 3 इंटू 5 इंटू 3, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं जो रिमेनिंग है। तो इफ वी मल्टीप्लाई
these two terms we get 4 and multiply these three terms we get 45. Therefore, coefficient of x raised to 6 in the expansion of e raised to 2x is 4/45. ये हमारा टर्म है, ठीक है। और अगर उसको फैक्टोरियल नोटेशन और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो यही आंसर है 2 रेज टू 6/6 फैक्टोरियल। क्योंकि आजकल क्या होता है कि कभी कभी जैसे ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, यही ऑप्शन दे दिया मल्टीपल चॉइस में कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू 2x एंड ऑप्शंस आर 2 रेज टू 6/6 फैक्टोरियल एंड अदर्स 3 मोर। तो 3 मोर तो रॉन्ग हो जाएंगे और यही ऑप्शन है करेक्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन पर हमें जाना है। या अगर इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इस तरह से हमें इसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करना चाहिए और इसके बाद जो भी नंबर आएगी 4/45 यहाँ पर आया है तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो ये रहा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और ये रहा इसका फैक्टोरियल फॉर्म। तो जिस फॉर्म में स्टूडेंट को आंसर लिखना है, उनके रिक्वायरमेंट क्या है, आंसर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ ये e रेज टू 2x के लिए फार्मूला पूछा जाएगा, यहाँ पर e रेज टू फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे x/2, x/3, x/4 ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जो मेन फार्मूला है एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला जो है फॉर e टू द पावर x के लिए है। यहाँ पर हम x की वैल्यू, जैसे ये तो x के लिए है और यहाँ पर हमने 2x सब्स्टिट्यूट किया, दो वैल्यू हमने देख लिए। हम यहाँ पर 3x, 4x, 5x एंड सो ऑन रख सकते हैं, या यहाँ पर x/2, x/3, x/4 भी रख सकते हैं एज पर एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले जो मेन फार्मूला है उस फार्मूले पर जाना है, उस फार्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और डिफरेंट वैल्यूज यूज करके स्टूडेंट को और भी सॉल्यूशंस करने चाहिए। जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू 3x। मान लो हमने यहाँ 3x कर दिया, x रेज टू 5 कर दिया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू 5x। तो ऐसा भी ले सकते हो। तो ये जो नंबर्स है, ये जो पावर्स है, ये हमारा पावर जो है फास्ट आ जाएगा और हमें लेस एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो हमें जब होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, जैसे वहाँ पर हमारे पास ये पावर कितने फास्ट आता है, उतने टर्म्स का ही एक्सपेंशन करके चेक करना है। क्लियर? तो ये रहा एक सोल्यूशन का प्रोसेस कि ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। और इसी तरह के हम और भी अभी सीरीज फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं इन द कमिंग वीडियोस। तो स्टूडेंट को कमिंग वीडियोस को भी बराबर फॉलो करते रहना चाहिए कि किसी भी समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, कॉलेज का क्वेश्चन पेपर कभी भी अपलोड हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये वीडियो हो गया तो यही है ओनली सोल्यूशन। हम बीच बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स और उस पर डिस्कशन और शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो स्टूडेंट को सभी वीडियोस बराबर देखते रहना चाहिए और ये तभी देख पाओगे जब ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे अपने लिए और बेल आइकन ऑन रखोगे, तो इमीडिएट इसकी जो नोटिफिकेशन है मिलती जाएगी और वीडियो को चेक कर लोगे कि आज की डेट में क्या अपलोड किया गया और उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 32th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसका जो आंसर है फैक्टोरियल फॉर्म में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 2 रेज टू 6/6 फैक्टोरियल एंड नंबर्स में जो फ्रैक्शन फॉर्म में है वो 4/45। और हाँ, एक दूसरी बात ये भी है कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है दैट वन इज रॉन्ग प्रिंटेड। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, या तो फैक्टोरियल या तो फ्रैक्शन, ये राइट आंसर है और यही आंसर को स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। और नाउ से क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में भी जो आंसर है टेक्सटुअल वो रॉन्ग प्रिंट हो गया है। तो वहां पर भी जो आंसर अभी मैं सॉल्व करके दूंगा इसका दैट वन इज करेक्ट आंसर और यही फॉलो करना चाहिए। तो आइए अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 और मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन ये है 33 क्वेश्चन। तो आज चैप्टर नंबर 2 विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेस एंड फार्मूलाज, ये सभी
ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग करेंगे और वो बिगनिंग में ही हम सभी रूल्स, फार्मूलाज, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके जो थियोरेटिकल पार्ट होंगे वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को कमिंग वीडियो का वेट करना चाहिए और वो चैप्टर को बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहिए। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 33rd, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ 1 plus 4 upon 5 plus 7 upon 25 plus 10 upon 125 plus 13 upon 625 plus and so on। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें ऐड करके बताना है कि इनका टोटल सम क्या होगा। और ये अगर हम लोग देखें तो एक तरह से ये प्लस एंड सो ऑन कर दिया गया, मतलब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है और यहाँ पर एक इनफाइनाइट टर्म्स लिखा भी है, इनफाइनाइट वर्ड यूज कर लिया गया है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। Since 1 plus 4 upon 5 plus 7 upon 25 plus 10 upon 125 plus 13 upon 625 plus and so on। अब हमें ये स्टूडेंट को बताना है कि सबसे पहले हमें तो ये रिलेशन देखना चाहिए कि इनके न्यूमरेटर में कुछ रिलेशन है या डिनोमिनेटर में कुछ अलग रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 1 एक ही टर्म है, यहाँ पर है 4, 1 के बाद आता है 4 और फिर 4 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आता है 10 और 10 के बाद आता है 13। तो इजिली यू कैन से हियर डिफरेंसेस आर 3। देखो 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आने वाले हैं। तो अब आइए यहाँ पर हम इनके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर्स क्या हैं। डिनोमिनेटर है यहाँ पर फर्स्ट, जैसे यहाँ पर हम 1/1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है हमारे पास 5, फिर इसके बाद आता है 25, फिर उसके बाद आता है 125 और फिर इसके बाद आता है 625। तो इस तरह से अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर को देखें, जैसे हमने बताया कि 1/1 ले सकते हैं या 1/1, तो 1/1 अगर हम लोग लिए तो जो 1 लिखेंगे उसको 5 टू द पावर 0 कर देंगे, 5⁻0, क्योंकि 1/5⁻0 दैट इज 1/1, ऐसा आ जाएगा। तो ये 5⁻0, 5⁻1, 5⁻2, 5⁻3, 5⁻4 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा एक यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है। और वो सीक्वेंस को अगर हम लोग क्लियरली देखें, मान लो कि यहाँ पर है 1/1, तो 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जो सीक्वेंस का रेशियो है यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं ये 2 सीक्वेंसेस के रेशियोज में लिखे गए हैं। तो जैसा कि न्यूमरेटर में है, तो हम न्यूमरेटर में देखते हैं कि ये एपी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और जो डिनोमिनेटर है वो है फॉर्मेशन ऑफ जीपी। तो इन दोनों को मिला करके ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज एजीपी। एजीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, अरिथमेटिको जेमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर दी गई, अब ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि दिस सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिको जेमेट्रिक सीक्वेंस। और अरिथमेटिको जेमेट्रिक सीक्वेंस का हमें फाइंड करना है सम, मीन्स एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऐसा बोला गया। तो एस इन्फिनिटी फॉर द अरिथमेटिको जेमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है उसको हमें फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला भी चाहिए, और फार्मूले के पहले हमें इसको ब्रेक करना है कि यहाँ पर जो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसको हम पहले ब्रेक करके लिखें। तो देखो दिस सीक्वेंस कैन बी रिटन एज 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/1 और 1/1 भी लिख सकते हो, प्लस 4 इंटू 1/5। देखो 4/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 इंटू 1/5। 7/25 can be expressed as 7 into 1 upon square of 5, plus 10/125 can be expressed as 10 multiplied by 1 upon cube of 5, plus 13/625 can be expressed as 13 multiplied by 1 upon 5 raised to 4, plus and so on। तो इस तरह से हमें एक यहाँ पर जो सीक्वेंस मिला ये है अरिथमेटिको जेमेट्रिक सीक्वेंस, अरिथमेटिको जेमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म आता है 1, ठीक है। तो विच इज एन एजीपी मतलब अरिथमेटिको जेमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ ए इक्वल टू 1, मीन्स फर्स्ट टर्म में ए इक्वल टू 1। और मैंने पहले भी बताया कि हमें जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर लेना होता है वो हम लोग ए पी का फर्स्ट टर्म यूज करते हैं। तो ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पर दोनों ही सेम है, कुछ भी बोल सकते हो, ए इक्वल टू 1। अब इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस फॉर एपी। तो यहाँ पर देखो जो हमारे टर्म्स हैं 1 4 7
10, 13, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया था कि इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3। अब इसके बाद आता है व्हाट इज द कॉमन रेशियो फॉर जीपी, जो जीपी के टर्म्स है। अब जीपी में देखो क्या है, 1, फिर है 1/5, 1/5 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं 1/5 क्यू, 1/5 और एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स तो जीपी में है, लेकिन T2/T1 क्या कहता है, 1/5/1 दैट इज 1/5, 1/5 स्क्वायर अपॉन 1/5 बिकम्स 1/5। तो चलो ये भी कंफर्म हो गया कि कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज मिल गए, ए, डी एंड आर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द वैल्यूज ऑफ ए, डी, आर 1, 3 एंड 1/5 respectively, or a equal to 1, d equal to 3, r equal to 1/5। अब इसके बाद हमें ढूंढना है फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एन ए जी पी, दैट इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एस इन्फिनिटी, क्योंकि देखो सम ऑफ इनफाइनाइट है तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एस इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी इक्वल्स ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें बाहर रहना चाहिए, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आजकल ऐसे क्वेश्चन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Therefore, S infinity equal to 1 upon 1 minus 1/5, ये वैल्यू ऑफ R है, प्लस यहाँ पर d इंटू आर लिखना है दोनों का, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो, तो 3 इंटू 1/5 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1/5। चलो अब इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं आगे। तो 1/1 माइनस 1/5 बिकम्स 1/4/5, क्योंकि देखो 1 माइनस 1/5 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 5 1 5 माइनस 1 दैट इज 4/5 प्लस 3 इंटू 1/5 3/5 एंटायर अपॉन हियर दिस इज 4/5, तो 4/5 स्क्वायर। अब इनको भी आगे सिंप्लीफाई करना है, एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो 1/4/5 बिकम्स 5/4, क्योंकि इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, प्लस 3/5 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, अब ये है 4/5 स्क्वायर दैट इज 16/25 हो गया। तो ये जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म बिकम्स 25/16। नाउ वी शुड सिंप्लीफाई दीज टू टर्म्स। 5/4 एज इट इज हियर, 5 5 जा 25, ये देखो 25/5 बिकम्स 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 बिकम्स 15/16 एज इट इज यहाँ पर। तो अब एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 बिकम्स 16। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम यूज करते हैं या इसको भी 16 फॉर्म बनाना है, 16 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 4। तो 4 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 20/16, तो 20/16 प्लस 15/16 मीन्स दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गई। देन वी कैन राइट हियर 20 प्लस 15/16, 20 प्लस 15 एंटायर अपॉन 16, and 20 plus 15 becomes 35, so 35/16। therefore S infinity equal to 35/16। तो ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, ये दोनों के क्वेश्चंस, सॉरी 32 एंड 33, ये दोनों के आंसर्स रॉन्ग दिए गए हैं, रॉन्ग प्रिंट हो गया है बाय मिस्टेक, तो उसको करेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 33 के लिए 35/16 और क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है 4/45। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस करेक्ट हैं, लेकिन इनके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स में हमें करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटुअल जो आंसर दिया गया वो बाय मिस्टेक रॉन्ग प्रिंट हो गया, रॉन्ग लिख दिया गया है। तो इसको स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिस करने के टाइम उसको चेंज कर लेना है। तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 के लिए कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, फार्मूले ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो सभी
फार्मूले जा करके स्टूडेंट को रेफर करना चाहिए और एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना चाहिए. In case you have any doubt from first exercise to sixth exercise as well as in the miscellaneous जो अभी अभी आज हमने कंप्लीट किया, यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है इस चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में या दूसरे किसी और चैप्टर में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. और अगर कोई इंक्वायरी करना है स्टूडेंट को किसी भी ये टीचिंग के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए पढ़ने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में इंक्वायरी भी कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, यू हैव कंप्लीटेड इजिली 2 चैप्टर्स इन मैथ्स पार्ट 2. अब अगले दिन हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करके एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग करेंगे. पहले तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें मिलेंगे और फार्मूले भी स्टार्टिंग में मैं सब कुछ बताऊंगा. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, इसी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और रिमेनिंग चैप्टर्स को पढ़ने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.